Hello class 10. So this is our part 2 video for MS Excel. Welcome to computer class. I am your teacher Nitish Kumar. In this class we read about one more time unit 3 spreadsheet intermediate level. It is the another name of MS Excel, as you already know. This is the part 2 video. In our previous video we already read about so many things of MS Excel. For example, AutoSum, conditional formatting, freezing, sorting of data, setting page layout, page break, so many things we read in our previous class. Now in this class we have to move forward and read those terms which we are left in first video. So we start with the view option. By default we have the view tab at the last of the tab list. Okay, by default the screen which you are see, the page which you are see right now is a normal view, Now we have so many views: page break view, page layout view and customized view. Now we start with the page break view. This is our page break view. Okay, in this view the page is showing this page. हम इस पेज को एक ही पेज में देख पाते हैं या फिर इसको कितने पेजेस में ये प्रिंट करेगा ये भी पता चल जाता है. हमारा पेज 1 में ये जाएगा, पेज 2 में ये जाएगा, पेज 3 में जाएगा, पेज 4 में ये जाएगा. ओके, and again I have to go in normal page and I want to show you something. When I go in a page layout and set the page to the Patriot, okay, now again I am going in a view option and set as page layout option. Now you see the whole thing is printing only in 2 pages. Okay, how it possible? With the help of Patriot option. Okay, in the previous class I already teach you what is a Patriot option. Now I am going to again in a okay. So now the page layout option. Why we use the page layout option? You see, when I again change the page option, page layout option, then it's again show the page number 3 and page number 4. Okay, now page layout view, it's a page layout view. This is the page layout view where we can see the every page in one single folder. Okay, there is a footer and there is a header. We can easily place the header and footer with our page. If we want to print with the heading of class 7 attendance. Okay, now you see this thing in with this page, with also this page, also in this page, because you know the header, we can use the header only one time and it's go in a every page. So this is the way how can we use the header in MS Excel also. Now again we go to the page layout view. Now customize view. This is our customized view. Okay, again we are going in a normal view. So this is the view option which we use in MS Excel. Now cell number or the cell range. By default everyone know a cell have his separate name. Every cell have his separate name. For example, this cell name is C5, this cell name is C5, is already C in this one. And when we select someone or a range of cell, it's also give a name with the C1. Okay, because the first cell you already choose the first cell only. But if I want to give a name to this cell, अगर हमको इस पूरे रेंज को एक नाम देना है, इसको सेल रेंज कहेंगे, इसको अगर कोई नाम देना है तो कैसे देंगे? तो उसके लिए सिंपली हम लोग नेम बॉक्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम कोई भी नाम दे देता हूँ, नेम 1. मैंने इसको नेम 1 दे दिया, प्रेस द इंटर दिया, वो सेट हो गया है. अब मैं कहीं और चला जाता हूँ. नाउ आई एम गोइंग इन अ डिफरेंट स्लाइड. पहले हम लोग अटेंडेंस वाले स्लाइड में थे, देखिए यहाँ पे वो नेम 1 है. हम दूसरे स्लाइड में चले जाते हैं कहीं पे भी. ओके, नाउ आई वांट टू गो इन दैट स्लाइड और दैट रेंज. क्या करना होगा? कुछ नहीं, नेम बॉक्स में जाना है. देयर इज अ स्मॉल ट्रायंगल
क्लिक किए, नेम वन को चूज करेंगे एंड नाउ यू सी वी आर इन हियर। अब आप कहोगे वो तो सेलेक्टेड था इसलिए, वो चलिए उसको सेलेक्ट से हटा देते हैं, फिर से कहीं चलते हैं, शीट 1 में गए, अगेन आई एम गोइंग हियर एंड चूज द नेम वन, नाउ आई एम हियर। तो ये था सेल रेंज और नेम रेंज। नाउ द सॉर्टिंग ऑफ डेटा, हाउ कैन वी सॉर्ट आवर डेटा और द फिल्टर आवर डेटा। okay, for sorting we have to go in a page layout option, my mistake, go in a data tab, okay, go in a data tab. This is the way of sorting. I am using the sorting option. If you want to give the sorting in this one, so how can we it will be sort for you, ये क्या से आपको सॉर्ट करके दिखाएगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नंबर्स दिए हैं, तो वो नंबर को ग्रेटर से लेस देन या लेस से ग्रेटर देन की ओर लगाएगा, ठीक है। करंट में ही हमको करना है, ठीक है। ये देखिए ग्रेटर से लेस देन की ओर जा रहा है, तो ये हो गया सॉर्टिंग का तरीका। जितना हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ उतना में ही, ओके। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, पूरा सेल सेलेक्ट करते हैं या पूरा इंटायर कॉलम सेलेक्ट करते हैं, तो उस पूरे इंटायर कॉलम में भी वो करेगा, ठीक। लो इसने उसमें सारे चेंजेस कर दिए। तो ये था सॉर्टिंग का तरीका। नाउ फिल्टर, कैसे फिल्टर हम करेंगे किसी भी डेटा को, ओके। फॉर एग्जांपल हमने इसमें फिल्टर लगाया है, ठीक है। मैं एक बार आपको रिमूव करके फिर से लगा के दिखाता हूँ। नाउ देयर इज नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नवंबर में मैं नवंबर में एक फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, मैंने नवंबर में एक फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है। सब में फ़िल्टर लग गया है, ठीक है, क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया था। अगर हम सेलेक्ट करके लगाते एक पूरे कॉलम को तो फिर उसी में सिर्फ लगता। चलिए फिर से एक बार करके दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने एक पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया है और फिर मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ, तो सिर्फ उसमें लगेगा। अगर मैं सेलेक्ट नहीं करता, किसी भी एक कॉलम पे चला जाता हूँ और फिल्टर लगा देता हूँ, तो सब में लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू हाउ टू यूज़ द फिल्टर। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिल्टर, फिल्टर का यूज़ क्या है। तो हम लोग को डेटा दिखाओ सिर्फ उसका जिसमें 16 हो, सिर्फ 16। पहले हम लोग सबको हटा देते हैं, ठीक है। सबका अनचेक हमने हटा दिया, सबको अनचेक कर दिया है। मैं सिर्फ 16 वाले डेटा देखना चाहता हूँ। ना यू सी इसमें जहाँ जहाँ सिर्फ 16 है सिर्फ उसको दिखा रहा है। सो इस तरह से हम लोग हर एक में लगा सकते हैं। जैसे मैं जनवरी में लगाना चाहता हूँ, जनवरी में भी सब सेलेक्टेड है, मैं सबको हटाता हूँ। पहले मैंने हटाया, मुझे सिर्फ 13 वाला डेटा देखना है, ओके। इसने 13 वाला डेटा मेरे को दिखा दिया। तो इस तरह से हम लोग सारा डेटा देख सकते हैं या उसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि किसी का नाम रवि है, ठीक है, मैंने रवि ढूंढ लिया। अब मुझे ढूंढना था कि वो क्लास 5 में, तो मैं क्लास 5 वाला डेटा सिर्फ देखूंगा। तो क्लास 5 में रवि कौन है, मिल गया। हो सकता है 2 रवि हो तो 2 मिलेंगे। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी सर्च अ पीपल विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। तो ये फिल्टर था। आगे चलते हैं। Now the most or the better thing is the use of chart. How can we use the chart? In our starting video we already know what is the use of chart. When we have a very large data and we want to see the data in a pictorial presentation, then we use the chart. A chart means what? A chart is a pictorial presentation of data. So when we have a very big data, मेरे पास ये बहुत बड़ा सा डेटा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर 1 से 10 तक मैं सबका नंबर देखना जल्दी में हूँ, मैं नहीं देखना चाहता, तो मैं क्या करूँ, मैं इस पर एक चार्ट बना दूंगा। सो फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट गो इन इंसर्ट टैब, ओके, चूज द कॉलम ऑप्शन, ओके, एंड देन क्लिक हियर। नाउ वी हैव द चार्ट। देयर इज वन प्रॉब्लम, रोल नंबर इज ऑल्सो कम इन दिस वन। रोल नंबर अभी आ गया है लेकिन हमें रोल नंबर नहीं डालना है। सो हाउ कैन वी डू दिस, वी हैव टू रिमूव द रोल नंबर। मैं रोल नंबर को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा रोल नंबर नीचे है, ठीक है, और सबका डेटा यहाँ पे दिख रहा है 1 by 1। रोल नंबर 2 से रोल नंबर 1 का डेटा नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, इसको भी हटा देते हैं हम लोग, हट गया। अब देखिए रोल नंबर 1 का डेटा यहाँ है 2, 3, 4, इस तरह से रोल नंबर 10 तक का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। हमको जिसका भी डेटा देखना है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ कैन वी क्रिएट अ चार्ट। चलिए एक बार फिर से करके देखते हैं।
Now for creating a chart, you have to select the data. So I am selecting the data. And then go in the insert tab and choose your chart. Any chart which you want to create, choose the chart. I am choosing this one. Look, we have the roll number also. रोल नंबर भी आ गया है. हमको रोल नंबर नहीं डालना है, हम रोल नंबर को पहले हटा देते हैं. For removing the roll number, go in a corner area. When you have this type of arrow, then simply click the left mouse button and hold it and drag it to the inside, and then the roll number is gone. Now we have one more extra column which is selected here, extra row actually. So I also want to remove this row. Then one more time, when we have the two-sided arrow, then I go into the back side. Okay, now you have our chart is created. You can create any type of chart with the help of this one. So I want to create a pie chart. So remember, a pie chart is always for a single person. Pie chart हमेशा सिर्फ एक आदमी का डेटा दिखाता है. तो चलिए एक पाई चार्ट बना के देखते हैं. इसके लिए हमने एक आदमी का डेटा सेलेक्ट किया है, इंसर्ट में गए हैं, पाई चार्ट में रहे हैं हम लोग. चूज योर टाइप्स ऑफ चार्ट, वॉट एवर यू वांट, जो भी आपको चाहिए वो चूज कर लीजिए. हम लोग को पहले रोल नंबर को हटाना होगा, एक सेल को कम करना होगा. नाउ वी हैव द डेटा, हमारे पास अपना चार्ट आ गया. अब हम देख सकते हैं किसमें कितना है. क्लिक करते के साथ सीधा पता चल जाता है 12%, या इसका वैल्यू 41 है. किसका वैल्यू है? ये ग्रीन कलर किसको दिया गया है? संस्कृत को दिया गया है. तो इस तरह से हम लोग, या फिर हमको कंप्यूटर का डेटा देखना है तो ये ग्रे कलर वाला है. ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कंप्यूटर लिखा हुआ भी है, और उसमें पता भी चल रहा है 48 है. तो इस तरह से हम लोग डेटा देख भी सकते हैं किसी एक का, और आराम से उसको पता भी कर सकते हैं. So this is the way how can we use a chart, or how can we create a chart. This is also known as pictorial presentation of data. Now our cell referencing or the another worksheet referencing. Okay, one more thing. Actually यहाँ पर एक MS Excel खुला हुआ है. मान लीजिए हम एक से ज़्यादा मल्टीपल MS Excel में काम कर रहे होते हैं. तो चलिए पहले मल्टीपल MS Excel खोल लेते हैं. मैं ओपन में जा रहा हूँ और एक और फाइल खोलता हूँ. ठीक है, मैंने खोल लिया. अब मान लीजिए मैं 2 पे काम कर रहा हूँ और मुझे बार बार एक से दूसरी में जाना पड़ रहा है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए यहाँ जाएंगे व्यू में और स्विच टू दिस वन. अगेन व्यू में जाना है एंड स्विच टू दिस वन. दिस इज कॉल्ड एज सेल रेफरेंसिंग और सेल लिंक थ्रू द one to the another. Okay, now some cell reference. What is cell reference first? For example, okay, I am going to the another shell one more time. Okay, this one is good. I want to copy the data of this cell at here. ठीक है, मुझे उस सेल का डेटा यहाँ पे कॉपी करके लाना है. तो मैं क्या करूँगा, या फिर मुझे ऐड करना है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखूँगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट में, एंड देन आई एम चूजिंग दिस सेल, देन गिव अ कोलोन एंड गो टू द लास्ट सेल. ओके, ब्रैकेट 1 एंड देन वी हैव द टोटल. हमको टोटल मिल गया. ठीक है, अब क्या करना है, हमको बाकियों का भी टोटल करना है. तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, या फिर हम पहले से ही सबको सेलेक्ट कर लेंगे. पहले से मैंने सबको सेलेक्ट किया, मैंने मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लिया है. ठीक है, अब मैं सिर्फ एक में फॉर्मूला लिखूंगा और वो सब में लिखा जाएगा. ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखना शुरू करता हूँ. इक्वल टू सम, स्टार्ट द ब्रैकेट एंड देन B2 कोलोन वेयर वी हैव टू गो G2. हमको G2 तक जाना है, एंड देन वी हैव द रिजल्ट. और बाकियों में क्या करना है,
फिर से उसको ड्रैग करना है। लेकिन हम अगर ड्रैग नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा हम इसको कॉपी कर लेंगे। हम इसको कॉपी किए हैं, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको हटा दिया। अगेन हम लोग सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे भी हमको काम करना है हम लोग सारे को सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट वाले में जाके अपना पेस्ट कर देंगे फॉर्मूला को, ठीक है। हमारा फॉर्मूला पेस्ट हो गया। नाउ यू सी इट्स ऑटोमेटिकली गो टू द बैक साइड, अपने आप नीचे चला गया और सारा डेटा हमको मिल गया। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज द सेल रेफरेंस। ओके, व्हाट इज द सेल रेफरेंस? Cell reference means not writing the formula or not giving the formula. Cell reference means when the formula or we use any number for the cell. For example, मुझे एक सेल रेफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे E7 क्या है? मैं इसके आगे इक्वल टू लगा देता हूँ, इक्वल टू E7। तो E7 यहाँ पर एक सेल रेफरेंस है। E7 क्या है? सेल रेफरेंस। चलिए E7 कहाँ है, चल के देखो। E7 560। तो E7 जो है वो एक सेल रेफरेंस है। तो इस सेल रेफरेंस को कहेंगे क्या? ये कहलाएगा रिलेटेड सेल रेफरेंस। ये क्या कहलाएगा? रिलेटेड सेल रेफरेंस। बट अगर हमको मिक्स्ड रेफरेंस करना है, सॉरी, हमको अगर इफ हमको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस करना है तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, रैंक निकालने के लिए जनरली हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें ही हमको वो मिल जाता है। उसमें हमको जो भी हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है उसका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? चलिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, चलिए इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने रैंक लिखा है, उसके बाद I2, तो I2 क्या है? रिलेटेड सेल रेफरेंस। But what is the absolute cell reference? Absolute cell reference is also the I2, but we use the dollar with the before the I and dollar before the 2. अगर हम दोनों के पहले डॉलर लगा देते हैं, $I, $2, तो ये रिलेटेड सेल रेफरेंस में आता है, ठीक है, सॉरी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आता है, ठीक है। अगर हम दोनों के आगे डॉलर लगा दें तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में चला जाता है, और अगर हम उसके आगे कुछ भी नहीं लगाएं, उसको डायरेक्ट लिख दें तो वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आता है, ठीक है। चलिए इसको इंटर दबाते हैं। नाउ द शेयरिंग, गो इन अ फाइल ऑप्शन, यूज द शेयर ऑप्शन। वी कैन इजीली शेयर आवर फाइल with the email or the people which you want. Okay, invite a people. I'm going to save to cloud. There's so many options. We can use the open drive for sharing. Okay, you have to sign in for the open drive and then you can easily save your drive or share your drive with your, or share your file with your friends. This is the way how can we share a